کامل ایپیسوڈ نمبر 10۔ اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جاتا رہا تھا، مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا، اس نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا تو دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمس بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست اے لیول کے بعد امریکہ گئے تھے وہ امریکہ کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس کے رشتہ داروں اور کزنس کا تھا۔ خود اس کے اپنے بہن بھائی بھی ایک جگہ پر نہیں تھے۔ وہ اپنی فیملی سے اتنا اٹیچ نہیں تھا کہ ان کی کمی محسوس کرتا یا ہوم سکنس کا شکار ہوتا۔ یہ صرف اس طرح اچانک وہاں بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح کے اضطراب کا شکار ہو رہا تھا۔ کامران سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا اور اگر وہ گھر آتا بھی تو اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے ایگزامز قریب آ رہے تھے، جبکہ سالار سارا دن یا تو اپارٹمنٹ میں بیٹھا فلمیں دیکھتا رہتا یا پھر چینلز گھمانے میں مصروف رہتا، اور جب وہ ان دونوں کاموں سے بیزار ہو جاتا تو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا۔ اس نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیو یارک میں اس علاقے کا چپا چھان مارا تھا جہاں کامران رہ رہا تھا۔ وہاں کا کوئی نائٹ کلب، ڈسکو، پب، بار یا تھیٹر، سینما، میوزیم اور آرٹ گیلری ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گیا ہو۔ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا، جن 3 لیوی لیگ کی یونیورسٹی میں اس نے اپلائی کیا تھا، ان تینوں میں رزلٹ آنے سے پہلے ہی اس کے ایڈمیشن کی درخواستیں قبول کی جا چکی تھیں۔ وہ تینوں یونیورسٹیز ایسی تھیں جن میں اس کے دور یا قریب کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمٹ کروائیں جہاں اس کے بہن بھائیوں میں سے نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرور موجود ہوتا، تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔ سالار کی جگہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا لیوی لیگ کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تو سکندر عثمان فخر میں مبتلا ہوتے اور اس چیز کو اپنے اور اپنی پوری فیملی کے لیے اعزاز سمجھتی، مگر یہاں وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ سالار پر نظر کیسے رکھ سکیں گے۔ سالار نے ان یونیورسٹیز میں سے ییل کو چنا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف ییل میں ان کا کوئی شناسہ اور واقف کار نہیں تھا، بلکہ نیو ہیون میں بھی سکندر عثمان کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد اس یونیورسٹی میں میرٹ اسکالرشپ بھی مل گیا تھا۔ اپنے باقی بھائیوں کے برعکس اس نے ضد کر کے ہاسٹل میں رہنے کے بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ سکندر عثمان اسے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ وہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا، کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے سکندر اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ہی ایک لمبی چوڑی رقم جمع کروا چکے تھے۔ حالانکہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر سالار سکندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے ہر وہ کام اور مطالبہ کرنے کے لیے بنایا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس چیز کو ان کے دوسرے بچے مشرق کہتے وہ اسے مغرب کہتا، جسے دوسرے زمین قرار دیتے وہ اس کے آسمان ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیتا۔ وہ اس کی باتوں، حرکتوں اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول ہائی کر سکتے تھے، اور کچھ نہیں۔ نیو ہیون جانے سے پہلے سکندر اور طیبہ اس کے لیے خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے تھے۔ وہ کئی دن تک اسے سمجھاتے رہے تھے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا، اور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں کرتی تھیں۔ دوسری طرف سکندر اور طیبہ واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے۔ وہ ییل سے فائنانس میں MBA کرنے آیا تھا، اور اس نے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں جن اداروں میں وہ پڑھتا رہا تھا، اگرچہ وہ بھی بہت اچھے تھے، مگر وہاں تعلیم اس کے لیے کیک واک تھی۔ ییل میں مقابلہ بہت مشکل تھا۔ وہاں بے حد قابل لوگ اور ذہین اسٹوڈنٹ موجود تھے، اس کے باوجود وہ بہت جلد نظروں میں آنے لگا تھا۔ اس میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھا تو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹس والی روایتی ملنساری اور خوش اخلاقی اس میں مفقود تھی۔ اس میں لحاظ و مروت بھی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ احساس کمتری اور مرعوبیت تھی جو ایشین اسٹوڈنٹ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیز میں فطری طور پر لے کر آتے ہیں۔ اس نے بچپن سے ہی بہترین اداروں میں پڑھا تھا،
ایسے ادارے جہاں پڑھانے والے زیادہ تر غیر ملکی تھے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی علم کے بہتے ہوئے سرچشمے نہیں ہوتے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ییل نے اسکالرشپ دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ وہ اگر باقی دونوں یونیورسٹیز میں سے کسی کا انتخاب کرتا تو اسکالرشپ اسے وہاں سے بھی مل جاتا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ جہاں چاہتا ہے ایڈمیشن لے سکتا تھا۔ اگر اپنے فیملی بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس اور قابلیت کا الزام نہ ہوتا تو تب بھی سالار سکندر اس قدر تلخ اور الگ تھلگ نیچر کا رکھتا تھا کہ وہ کسی کو اپنی خوش اخلاقی کے جھوٹے مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے آئی کیو لیول نے پوری کر دی تھی۔ شروع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پروفیسرز، کلاس فیلوز کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے تعلیمی اداروں میں اسی قسم کی توجہ حاصل کیا کرتا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول باتوں پر بحث برائے بحث کرتا۔ اس کے سوال ہی اس طرح کے ہوتے تھے کہ اس کی اکثر پروفیسرز کو فوری طور پر ان کا جواب دینے میں دشواری ہوتی، جو اب غیر تسلی بخش بھی ہوتا۔ تب بھی وہ جتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر وہ یہ تاثر بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اس جواب کو تسلی کر رہا تھا۔ وہ بحث صرف ان پروفیسر سے کرتا تھا جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا کہ وہ ان سے واقعی کچھ نہ کچھ سیکھے گا، یا جب کے پاس روایتی یا کتابی علم نہیں ہوتا۔ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے بہت مشکل نہیں تھی، نہ ہی اس کا سارا وقت پڑھائی میں گزرتا۔ پہلے کی نسبت اسے کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہوم سکنس کا شکار نہیں تھا، 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا ہوتا کہ ہر وقت اس کی کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ میں اس کے لیے کوئی نئی اور اجنبی جگہ تھی، اس لیے اس نے وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ رابطہ بڑھانے کی دانستہ طور پر کوئی کوشش نہیں کی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے اس کی شناسائی ہو گئی۔ یونیورسٹی کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسیشنز اور کلبز میں اس کی دلچسپی تھی، اور اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا، خاص طور پر ویکینڈز، سینما، کلبز، ڈسکوز، تھیٹرز۔ اس کی زندگی انہی چاروں کے درمیان تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، ہر نیا اسٹیج پلے، ہر نیا کانسرٹ اور کوئی بھی نئی انسٹرومنٹل پرفارمنس وہ نہیں چھوڑتا تھا، یا پھر ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ، مہنگے سے مہنگا اور سستے سے سستا، اسے ہر ایک کے بارے میں مکمل معلومات تھی، اور سب کے درمیان وہ ایڈونچر اس کے ذہن میں اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ سکندر کو اس کی نکاح کا کب پتہ چلا، کیسے پتہ چلا، سالار نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سکندر عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا۔ یہ حسن یا ناصر نہیں تھے جنہوں نے سکندر عثمان کو سالار اور امامہ کے بارے میں بتایا ہو، وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا، یا خود امامہ ہی ہوگی جس نے اس سے فون پر بات کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ اس کے بجائے سکندر عثمان سے ساری بات کی جائے، اور اس نے یقیناً ایسا ہی کیا ہوگا، اسی لیے اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اس رابطے کرنے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کر وہ نکاح نامہ برآمد کر لیا تھا۔ مگر یہ سب کب ہوا تھا؟ وہ یہ سوال تھا جس کا جواب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امامہ کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ یکے بعد دیگر وہ اس کے ہاتھوں زخ اٹھانے پر مجبور ہوا تھا، اور اب وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے اس تمام معاملے میں امامہ کی مدد کیسے کی۔ بعض دفعہ اسے حیرانی ہوتی کہ آخر وہ امامہ جیسی لڑکی کی مدد کرنے کے لیے تیار کیسے ہو گیا تھا، اور اس حد تک مدد کے وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی کوفت محسوس کرتا تھا۔ آخر میں نے اس کی مدد کیوں کی، جبکہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا کہ اس کے رابطہ کرنے میں وسیم کو، اس کے والدین کو، یا خود اپنے والدین کو اس کے بارے میں بتا دیتا، پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتا، اس کے کہنے پر اس کے ساتھ سرے سے نکاح ہی نہ کرتا، یا اسے گھر سے فرار ہونے میں تو کبھی اس کی مدد نہ کرتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا تھا جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کی ہاتھوں میں استعمال ہوا ہو۔ اتنی فرمانبرداری، اتنی تابعداری آخر کیوں، جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ کسی طرح سے بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگ رہی تھی۔ وہ کسی سائیکولوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے زاویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جوں وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تو مجھے کیا فرق پڑے گا، وہ سوچتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کی حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا، اور اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔
सलार की तरह वो भी अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, मगर सलार के बरक्स इसका घराना खासा मजहबी था। ये सलार का अंदाज़ा था। साद की हंस मजाक बहुत अच्छी थी और वो बहुत हैंडसम भी था। न्यू हेवन में एक अमरीकी दोस्त के तवज्जो से इसकी मुलाकात साद से हुई थी और इसकी तरफ से दोस्ती में पहल करने वाला साद ही था। सलार ने इसकी दोस्ती को कबूल करने में कदरे तामुल किया, क्योंकि इसे यूं लगता था जैसे साद और इसके दरमियान कुछ भी मुश्तरक नहीं है। साद वहाँ से एमफिल कर रहा था। सलार के बरक्स वो पढ़ाई के साथ जॉब भी कर रहा था। इसका हुलिया इसके मजहब से जज्बाती वाबस्तगी बताने के लिए काफ़ी था। इसने दाढ़ी रखी हुई थी और मजहब के बारे में इसका इल्म बहुत ज़्यादा था। सलार ने ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसे शख्स से दोस्ती की थी जो मजहबी था। साद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था और दूसरों को भी इसके लिए कहता रहता था। वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और क्लब्स में भी बहुत एक्टिव था। सलार के बरक्स अमेरिका में इसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ एक दूर के चचा थे जो किसी दूसरी स्टेट में रहते थे। शायद इसीलिए अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा सोशल था। सलार के बरक्स वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और शायद ये लाड और प्यार ही का नतीजा था जिसने इसके वालिदैन को इसे इतनी दूर तालीम के लिए भेज दिया था, वरना इसके बाकी दोनों भाई साद के वालिद के साथ ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस में शरीक हो गए थे। वो भी एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर रहता था, मगर इसके साथ इस अपार्टमेंट में 4 और लोग भी रहते थे। इन 4 में से 2 अरब और एक बांग्लादेश के अलावा एक और पाकिस्तानी था। वो तमाम स्टूडेंट्स थे। साथ पहली ही मुलाकात में सलार से बहुत बेतकल्लुफ़ हो गया था। सलार के अमरीकी दोस्त जीफ ने जब साद को सलार की एकेडमिक कामयाबी के बारे में बताया तो हर एक की तरह साद भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका। सलार को साद का चेहरा देखकर और ख़ास तौर पर इसकी दाढ़ी देखकर हमेशा जलाल का ख्याल आता। दाढ़ी की वजह से दोनों में अजीब सी मुबासलत और मुशाबहत नज़र आती। कई बार दूसरे दोस्तों के अलावा साद भी वीकेंड पर इसके साथ होता। तुम मुसलमान हो लेकिन मजहब के सिरे से पाबंदी नहीं करते, साद ने एक दफ़ा सलार से कहा, और तुम ज़रूरत से ज़्यादा मजहबी हो, सलार ने जवाबन कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह तुम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते रहते हो और हर वक्त इस्लाम की बात करते रहते हो, ये कुछ ओवर एक्टिंग टाइप चीज़ नहीं हो जाती? सलार ने बड़ी साफ गोई के साथ कहा, तुम थकते नहीं हो हर वक्त नमाज पढ़कर? ये फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, हमें हुक्म दिया गया है कि हम इसकी इबादत करें, इसे हर वक्त याद रखें। साद ने जोर देते हुए कहा। सलार ने एक जमाई ली, तुम भी इबादत किया करो, आखिर तुम भी मुसलमान हो। साद ने इससे कहा, मैं जानता हूँ, और इबादत ना करने से क्या मैं मुसलमान नहीं रहूँगा? इसने कुछ ठीके लहजे में साद से कहा, सिर्फ नाम का मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तुम? साद, प्लीज़ इस किस्म के फजूल टॉपिक पर बात मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें मजहब में दिलचस्पी है, मगर मुझे नहीं। बेहतर है हम एक दूसरे की राय और जज्बात का ख्याल रखें और एक दूसरे पर कुछ ठूंसने की कोशिश ना करें। जैसे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नमाज छोड़ दो, इस तरह तुम मुझे ये ना कहो कि मैं नमाज पढ़ूँ। सलार ने इंतहाई साफ गोई से कहा तो साद खामोश हो गया। मगर कुछ दिनों बाद वो इसके अपार्टमेंट पर आया। सलार इसकी तवाज़ु के लिए कुछ लाने के लिए किचन में गया तो साद भी इसके पीछे ही आ गया। इसने बातों के दौरान फ्रिज खोल लिया और इसमें मौजूद खाने की चीज़ों पर नज़र दौड़ाने लगा। सलार पिछली रात एक फास्ट फूड आउटलेट से अपना पसंदीदा बर्गर लेकर आया था। वो फ्रिज में पड़ा था। साद ने इसे निकाल लिया। इसे रख दो, ये तुम ना खाना। सलार ने जल्दी से कहा। क्यों? साद ने माइक्रोवेव की तरफ जाते हुए पूछा। इसमें पोर्क, सुअर का गोश्त है। सलार ने लापरवाही से कहा। मजाक मत करो। साद ठिठक गया। इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? सलार ने हैरानी से इसे देखा। साद ने जैसे फेंकने वाले अंदाज में प्लेट शेल्फ में रख दी। तुम पोर्क खाते हो? मैं पोर्क नहीं खाता, मैं सिर्फ ये बर्गर खाता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है। सलार ने बर्नर जलाते हुए कहा। तुम जानते हो ये हराम है इस्लाम में? हाँ, और फिर भी? अब तुम फिर वही तबलीगी और गैस शुरू मत करना। मैं सिर्फ पोर्क ही नहीं खाता, हर किस्म का गोश्त खा लेता हूँ। सलार ने लापरवाही से कहा। वो अब फ्रिज की तरफ जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। खैर, इसमें ऐसी बेयकीनी वाली क्या बात है? ये खाने के लिए ही होता है। वो अब फ्रिज में पड़े दूध के पैकेट को निकाल रहा था। हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती। साथ कुछ तिलमिलाया। ठीक है, तुम ज़्यादा मजहबी ना सही, मगर मुसलमान तो हो, और इतना तो तुम जानते होगे कि पोर्क इस्लाम में हराम है, कम अज़ कम एक मुसलमान के लिए। सलाह खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रहा। मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा। साद एकदम किचन से निकल गया। क्यों? सलार ने मुड़कर इसे देखा। साद वॉश बेसिन के सामने खड़ा साबुन से हाथ धो रहा था। क्या हुआ? सलार ने इस कदर हैरानी से पूछा। साद ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो इसी तरह कलमा पढ़ते हुए हाथ धो रहा था। सलार चुभती हुई नज़रों से होंठ भींचे से देखता रहा। हाथ धोने के बाद इसने सलार से कहा,
मैं तो इस फ्रिज में रखी हुई कोई चीज़ नहीं खा सकता, बल्कि तुम बर्तनों में भी नहीं खा सकता। अगर तुम ये बर्गर खा लेते हो तो और भी क्या कुछ नहीं खा लेते होगी? चलो बाहर चलते हैं, वहीं जाकर कुछ खाते हैं। ये बहुत इंसल्टिंग है, सलार ने कदरे नाराज़गी से कहा। नहीं, इंसल्ट वाली तो कोई बात नहीं है, बस मैं हराम गोश्त नहीं खाता और तुम इस मामले में परहेज के आदी नहीं हो, साद ने कहा। मैंने तुम्हें ये गोश्त खिलाने की कोशिश नहीं की, तुम नहीं खाते, इसलिए मैंने वो बर्गर पकड़ते ही तुम्हें मना कर दिया, सलार ने कहा। मगर तुमको शायद कोई फोबिया हो गया है, तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अपने पूरे प्लेट में इस जानवर को पाला हुआ है और रात दिन इन्हीं के साथ रहता हूँ। सलार नाराज सा हो गया। चलो बाहर चलते हैं, साद ने इसकी नाराज़गी को ख़त्म करते हुए कहा। बाहर चलकर कुछ खाएंगे तो मैं बिल पे नहीं करूँगा, तुम करोगे, सलार ने कहा। ठीक है, मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, तुम चलो, साद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। और अगली दफ़ा तुम मेरे अपार्टमेंट पे आते हुए घर से कुछ खाने के लिए लेकर आना, सलार ने कदरे तंजिया लहजे में इससे कहा। अच्छा, ले आऊँगा, साद ने कहा। वो इस वीकेंड पर झील के किनारे बैठा हुआ था। इसकी तरह बहुत से लोग वहाँ पर रहे थे। वो कुछ देर इधर उधर फिरने के बाद एक बेंच पर आकर बैठ गया। बहुत लापरवाही से एक आइसक्रीम स्टिक खाते हुए वो इधर से उधर नज़रें दौड़ाने में मसरूफ़ था जब इसकी तवज्जो 3 साल के एक बच्चे ने अपनी तरफ मबजूल कर ली। वो बच्चा एक फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा था और इससे कुछ फासले पर सियाह हिजाब ओढ़े एक लड़की खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए इस बच्चे को देख रही थी। वो वहाँ मौजूद बहुत सी एशियन में से एक थी, मगर हिजाब में मलबूस वाहिद लड़की थी। वो लाशऊरी तौर पर इसे देखे गया। वो बच्चा फुटबॉल को पांव से ठोकर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसकी बेंच की तरफ आ गया था। एक और ठोकर ने बॉल को सीधा सलार की तरफ भेज दिया। किसी गैर इरादी अमल के तहत सलार ने इसी तरह बैठे बैठे अपना दायां पांव पहने हुए जॉगर की मदद से इस बॉल को रोका और फिर पांव हटाया नहीं, बल्कि इसी तरह फुटबॉल पर ही रखा रहा। मगर इस बार इसकी नज़र इस लड़की के बजाय इस बच्चे पर थी जो तेज़ रफ्तारी से इस बॉल के पीछे इसकी तरफ आया। इसके बिल्कुल पास आने के बजाय वो कुछ दूर रुक गया। शायद वो तवक्का कर रहा था कि सलार बॉल को इसकी तरफ लड़खा देगा, मगर सलार ने इसी तरह फुटबॉल पर एक पाँव रखे बाएं हाथ से आइसक्रीम खाते हुए दूर खड़ी इस लड़की को देखता रहा। शायद इसे तवक्का थी कि अब वो करीब आएगी। ऐसा ही हुआ था। कुछ देर तक इसे फुटबॉल ना छोड़ते देखकर वो लड़की कुछ हैरानी से इसकी तरफ आई। ये फुटबॉल छोड़ दें, इसने करीब आकर बड़ी शाइस्तगी से कहा। सलार चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर इसने फुटबॉल से अपना पाँव उठाया और वहीं बैठे बैठे फुटबॉल को एक ज़ोरदार किक लगाई। फुटबॉल उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरी। किक लगाने के बाद इसने इत्मीनान से इस लड़की को देखा। इसका चेहरा अब सुर्ख हो रहा था, जबकि वो बच्चा एक बार फिर इस फुटबॉल की तरफ भागता जा रहा था जो अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। इस लड़की ने ज़ेर लब इससे कुछ कहा और फिर वापस मुड़ गई। सलार ने इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को सुन या समझ नहीं सका, मगर इसके सुर्ख चेहरे और तासुरात से वो ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकता था कि वो कोई खुशगवार अल्फाज नहीं थे। इससे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी भी हुई, मगर जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि इसने यह हरकत क्यों की। वो लड़की इमामा से मुशाबहत रखती थी। वो लंबे से सियाह कोट में सियाह हिजाब ओढ़े हुए थी, दराज कद और बहुत दुबली पतली थी, बिल्कुल इमामा की तरह। इसकी सफ़ेद रंग का सियाह आंखें भी इसे इमामा जैसी महसूस हुई थी। इमामा बहुत लंबी चौड़ी चादर में खुद को छुपाए रखती थी। वो हिजाब नहीं लेती थी, मगर इसके बावजूद इस लड़की को देखते हुए इसे इसका ख्याल आया था और लाशऊरी तौर पर इसने वो नहीं किया जो वो लड़की चाहती थी। शायद इसे किसी हद तक ये तस्कीन हुई थी कि इसने इमामा की बात नहीं मानी, मगर वो इमामा नहीं थी। आखिर क्या हो रहा है मुझे? इस तरह तो इसने हैरान होते हुए सोचा। वो जेब में से एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। सिगरेट की कश लेते हुए वो एक बार फिर इस लड़की को देखने लगा जो अपने बच्चे को फुटबॉल के साथ खेलते देखकर मुस्कुरा रही थी। सलार इसे देख रहा था और इसके अलावा वो हर शे से बेनियाज नजर आ रहा था। इस रात वो काफ़ी देर तक इमामा के बारे में सोचता रहा था, इसके और जलाल अंसर के बारे में। इसे यकीन था कि अब तक वो दोनों शादी कर चुके होंगे, क्योंकि अपना निकाहनामा सिकंदर से हासिल करने के बाद वो ये जान चुकी होगी कि तलाक का हक पहले ही इसके पास था। इसी सिलसिले में सलार की मदद की ज़रूरत नहीं थी, ये जानने के बावजूद कि जलाल अंसर इसके कहने पर भी इमामा से शादी पर तैयार नहीं हुआ था। इसे फिर भी न जाने क्यों ये यकीन था कि जलाल अंसर एक बार इमामा के पास पहुंच जाने पर इसे इनकार नहीं कर सका होगा। इसकी एक मिन्नत समाजत पर वो मान गया होगा। इमामा इसके मुकाबले में बहुत खूबसूरत थी और इमामा का ख़ानदान मुल्क के ताकतवर तरीन ख़ानदानों में से एक था। कोई अहमक ही होगा जो जलाल अंसर जैसी हैसियत रखते हुए इमामा को सोने की चिड़िया ना समझता हो, या फिर हो सकता है वो वाकई इमामा की मोहब्बत में मुब्तला हो। जो भी था, इसे यकीन था कि वो दोनों शादी कर चुके होंगे
और पता नहीं किस तरह हाशिम मुबीन की आंखों में धूल झोंककर छुपने में कामयाब हुए होंगे। या ये भी मुमकिन है कि हाशिम मुबीन ने अब तक इन्हें ढूंढ निकाला होगा। मुझे पता तो करना चाहिए इस बारे में, इसने सोचा और फिर अगले ही लम्हे खुद को झड़का। फॉर गॉड सेक सलार, दफ़ा करो इसे, जाने दो, क्यों खामख्वाह इसके पीछे पड़ गए हो? ये जानकर आखिर क्या मिल जाएगा कि हाशिम मुबीन इस तक पहुँचे हैं या नहीं? इसने बेख्तियार खुद को झड़का, मगर इसका तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ। वाकई मैंने यहाँ आने के बाद ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि हाशिम मुबीन अब तक इस तक पहुँचा या नहीं? इसे हैरानी हो रही थी। मेरा नाम वेनिस एडवर्ड है, वो लड़की इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली। वो इस वक्त लाइब्रेरी की बुक शेल्फ से किताब निकाल रहा था जब वो इसके करीब आई थी। सलार सिकंदर, इसने वेनिस से हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं जानती हूँ तुम्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है, वेनिस ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। सलार ने इसे ये नहीं कहा कि इसे भी तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी क्लास के 50 लोगों के नाम से जानता था और पहचानता था। ना सिर्फ ये बल्कि वो ब्रीफ बायोडेटा भी बगैर अटके किसी गलती के बता सकता था। जैसे वो इस वक्त वेनिस को ये बताकर हैरान कर सकता था कि वो न्यू जर्सी से आई है। वहाँ वो 1 साल हैवरेज कंपनी में काम करती रही थी। इसके पास मार्केटिंग में एक डिग्री थी और अब वो दूसरी डिग्री के लिए वहाँ आई थी और वो इस वक्त कम से कम 6-7 साल बड़ी थी। अगरचे अपने कदो कामत से सलार इससे बहुत बड़ा लगता था, मगर वो जानता था कि वो इस वक्त अपने बीच में सबसे कम उम्र था। अपने बीच में सिर्फ वही था जो किसी किस्म की जॉब के बगैर सीधा MBA के लिए आया था। बाकी सबके पास कहीं ना कहीं कुछ साल काम करने का तजुर्बा था, मगर इस वक्त वेनिस को ये सब कुछ बताना इसे खुशफहमी का शिकार करने के मुतरादिफ था। अगर मैं आपको कॉफ़ी की दावत दूँ तो, वेनिस ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, तो मैं इसे कबूल कर लूँगा। वो इसकी बात पर हंसी। तो फिर चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। सलार ने कंधे उचकाए और किताब को दोबारा शेल्फ में रख दिया। कैफेटेरिया में बैठकर वो दोनों तकरीबन आधे घंटे तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। ये वेनिस के साथ इसकी शनासाई का आगाज़ था। सलार के लिए किसी लड़की के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो ये काम बहुत आसानी से कर लिया करता था। इस बात मज़ीद आसानी ये थी कि पहल वेनिस की तरफ से हुई थी। 3-4 मुलाकातों के बाद इसने एक रात वेनिस को अपने फ्लैट पर रात गुजारने के लिए इनवाइट कर लिया और वेनिस ने किसी तामुल के बगैर इसकी दावत कबूल कर ली। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाद इकट्ठे बहुत ही जगहों पर फिरते थे। सलार के फ्लैट पर इनकी वापसी लेट नाइट हुई थी। वो किचन में अपने और इसके लिए गिलास तैयार करने लगा, जबकि वेनिस ने बेतकल्लुफ़ी से इधर उधर फिरते हुए इसके अपार्टमेंट का जायज़ा ले रही थी। फिर वो इसके करीब आकर काउंटर के सामने खड़ी हो गई। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है तुम्हारा। मैं सोच रही थी कि तुम अकेले रहते हो तो अपार्टमेंट का हुलिया खासा ख़राब होगा, मगर तुमने तो हर चीज़ बड़े सलीके से रखी हुई है। तुम ऐसे ही रहते हो या ये एहतमाम खास मेरे लिए किया है? सलार ने गिलास इसके आगे रख दिया। मैं ऐसे ही रहता हूँ, करीने और तरीके से। इसने घूंट भरा और गिलास दोबारा काउंटर पर रखते हुए वो वेनिस के करीब चलाया। इसने इसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। वेनिस मुस्कुरा दी। सलार ने इसे अपने कुछ और करीब किया और फिर एकदम साकित हो गया। इसकी नज़रें वेनिस की गर्दन की जंजीर में झूलते इस मोती पर पड़ी थी जिसे आज इसने पहली बार देखा था। सर्दी के मौसम की वजह से वेनिस भारी भरकम स्वेटर्स और जैकेट्स पहना करती थी। इसने 1-2 बार इसके खुले कॉलर से नजर आने वाली इस जंजीर को देखा था, मगर इस जंजीर में लटका हुआ वो मोती आज पहली बार इसकी नज़रों में आया था, क्योंकि आज पहली बार वेनिस एक गहरे गले की शर्ट में मलबूस थी। वो इस शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहने हुई थी जिसे इसने सलार के अपार्टमेंट में उतार दिया था। इसके चेहरे की रंगत बदल गई। एक झमाके के साथ वो मोती से कहीं बहुत पीछे किसी और के पास ले गया था। मज़ाह करते हाथ और उंगलियां, हाथ और कलाई से कोहनी तक का सफ़र करती उंगलियां, आंखों से पेशानी, पेशानी से सफ़ेद चादर के नीचे सियाह बालों पर फिसलते हुए हाथ। इमामा की गर्दन के गिर्द मौजूद जंजीर तंग थी। इसमें लटकने वाला मोती इसकी हंसली की हड्डी के बिल्कुल साथ झूलता। जंजीर थोड़ी सी भी लंबी होती तो वो इसे देख ना पाता। इस रात वो बहुत तंग गले की शर्ट और स्वेटर में मलबूस थी। इस मोती को देखते हुए वो कुछ देर के लिए मफलूज हो गया। वो इसे किस वक्त याद आई थी? इसने मोती से नजरें चुराने की कोशिश की। वो अपनी रात ख़राब नहीं करना चाहता था। इसने वेनिस को देखकर दोबारा मुस्कुराने की कोशिश की। वो इससे कह रही थी, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे तुम्हारी आंखों से घिन आती है। किसी आवाज़ ने इसे एक चाबुक मारा था और इसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। वेनिस के वजूद से अपनी बाजू हटाते हुए वो चंद कदम पीछे मुड़ा और काउंटर पर पड़ा हुआ गिलास उठा लिया। वेनिस हक्का पक्का इसे देख रही थी। क्या हुआ? वो चंद कदम आगे बढ़ाई और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ तशवीश से पूछा,
सलार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में खाली किया। वेनस इसके जवाब ना देने पर अब कुछ उलझे हुए अंदाज में से देख रही थी। वेनस में इसकी दिलचस्पी ख़त्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे। वो नहीं जानता था इसे क्यों इसकी वजह से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में इसके साथ डांस करते रहा था और वो इसके साथ बेहद खुश था। और अब चंद मिनटों में सलार ने अपने कंधे झटके और सिंक की तरफ चला गया। वो अपना गला धोने लगा। वेनस दूसरा गिलास लेकर इसके पास चली आई। सलार ने इससे गिलास ले लिया। वो अपने सीने पर दोनों बाजू लपेटे इसके बिल्कुल पास खड़ी थी, इसे देखती रही। सलार को इसकी नज़रों से कुछ झंझलाहट हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। गिलास को शेल्फ पर रखते हुए इसने वेनस से कहा। वो हैरानी से इसे देखने लगी। वो बिलवास्ता तौर पर इसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। वेनस के चेहरे का रंग बदल गया। सलार का रवैया बेहद तौहीन आमीज़ था। वो चंद लम्हे इसे घूरती रही, फिर तेज़ी के साथ अपना बैग स्वेटर उठाकर अपार्टमेंट का दरवाज़ा धमाके से बंद करके बाहर निकल गई। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। वेनस और इमामा में कहीं भी किसी किस्म की कोई मुशाबहत नहीं थी। दोनों की गर्दनों में मौजूद मोती भी बिल्कुल एक जैसा नहीं था। इसके बावजूद इस वक्त इसकी गर्दन में झूलते मोती को देखकर बेख्तियार वो याद आई थी। क्यों? अब फिर क्यों? आखिर इस वक्त क्यों? वो बेहद मुश्तइल हो रहा था। इसकी वजह से इसकी रात ख़राब हो गई थी। इसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का गुलदान उठाया और पूरी कुव्वत से इसे दीवार पर दे मारा। वीकेंड के बाद वेनस ने इससे दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो इससे बड़े रूखे और उखड़े हुए अंदाज में मिला। ये इससे ताल्लुकात शुरू करने से पहले ही ख़त्म करने का वाहिद रास्ता था। इसे हर इस औरत से झुंझलाहट होती थी जो इसे किसी भी तरह से इमामा की याद दिलाती, और वेनस इन औरतों में शामिल हो गई थी। वेनस जो इसकी तरफ से किसी माजरत और अगली दावत का इंतज़ार कर रही थी, वो इसके इस रवैये से बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हुई थी। येल में इसका ये पहला अफेयर था। अगले चंद माह वो पढ़ाई में बेहद मसरूफ़ रहा, इतना मसरूफ़ कि इमामा को याद रखने और इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद ये सिलसिला भी चलता रहता अगर इस शाम अचानक इसकी मुलाकात जलाल अंसर से ना होती। वो वीकेंड पर बोस्टन गया हुआ था जहाँ इसके चचा रहते थे। वो वहाँ अपने एक कज़न की शादी अटेंड करने आया था। इस शाम सलार अपने कज़न के हमरा था जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो वहाँ खाना खाने आया हुआ था। इसका कज़न ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठ कर गया था। सलार खाने का इंतज़ार कर रहा था जब किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा। हेलो। सलार ने बेख्तियार मुड़कर इसे देखा। आप सलार हैं? इस आदमी ने पूछा। वो जलाल अंसर था। इसे पहचानने में लख्ता भर के लिए वक्त इसलिए हुई थी क्योंकि इसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सलार ने खड़े होकर इससे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। रस्मी अलेक्स लैग के बाद इसने जलाल को रस्मन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है, बस आप पर इत्तेफाकन नज़र पड़ गई तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। इमामा कैसी है? जलाल ने बात करते करते अचानक कहा। सलार को लगा वो इसका सवाल ठीक से सुन नहीं सका। सॉरी, इसने माजरत खाना अंदाज में इख्तिसार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया। मैं इमामा का पूछ रहा हूँ, वो कैसी है? सलार पल के चिपकाए बगैर इसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में इससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसने कुछ उलझते हुए अंदाज में कंधे उचकाए थे। इस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैंने इससे शादी से इनकार कर दिया था। आप अच्छी तरह जानते हैं 1 साल पहले आप ही तो आए थे इस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे इसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि आप खुद इससे शादी कर लें। सलार बेयकीनी से इसे देखता रहा। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद आपने इससे शादी कर ली होगी। वो अब वजाहत कर रहा था। आपने इससे शादी नहीं की? सलार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी, मैंने इनकार कर दिया था। फिर इससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना कि वो घर से चली गई है। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी, इसलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहीं हूँ, सलार ने कहा। और मुझे यहाँ आए 2 माह हुए हैं, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद इसने दोबारा आपसे रब्ता या मुलाकात करने की कोशिश की थी? सलार ने कुछ उलझते हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर इसने आपसे रब्ता करने की कोशिश ना की हो? सलार को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे रब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी, इसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने इसे बता दिया था कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ही मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके पास नहीं गई?
मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? और अगर वो मेरे साथ होती तो मैं आपके पास इसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेनियाजी थी। मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? सलार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा राब्ते कर ज़रूरत पड़ सकती है, जलाल ने बड़ी साफ़गोई से कहा और वापस मुड़ गया। सलार कुछ उलझे हुए अंदाज में इसकी पुश्त पर नजर जमाए रहा। ये बाकाबिले यकीन बात थी कि वो जलाल से नहीं मिली। क्यों? क्या इसने मेरी इस बात पर वाकई यकीन कर लिया था कि जलाल ने शादी कर ली है? सलार को अपना झूठ याद आया, मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मजीद उलझा। मेरी बात पर इसे यकीन कैसे आ सकता है जबकि वो कह रही थी कि इसे मेरी बात पर यकीन नहीं है? वो कुर्सी खींचकर दोबारा बैठ गया। और अगर जलाल के पास नहीं गई तो फिर वो कहाँ गई? क्या किसी और शख्स के पास, जिससे इसने मुझे बेखबर रखा? मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई और होता तो वो मुझे इससे राब्ता करने के लिए कहती। अगर वो फौरी तौर पर जलाल के पास नहीं भी गई तो सिकंदर से निकाहनामा लेने और तलाक के हक़ के बारे में जानने के बाद इसे इसी के पास जाना चाहिए था। वो ये नहीं जानता था कि इसने जलाल के इस फर्जी शादी के बारे में इसे क्यों बताया। शायद वो इसे परेशान करना चाहता था, या फिर ये देखना चाहता था कि वो अब क्या करेगी, या फिर शायद वो बार बार इससे मुतालबे से तंग आ गया था कि वो फिर जलाल के पास जाए, फिर जलाल से राब्ता करे। वो ऐसा करने की वजह नहीं जानता था। जो भी था, बहरहाल इसे यकीन था इमामा जलाल के पास जाएगी। मगर सलार को अब पता चला कि इसकी तवक्का या अंदाजे के बरक्स वो वहाँ गई ही नहीं। वेटर अब खाना सर्व कर रहा था। इसका कज़न आ चुका था। वो दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहे, मगर सलार खाना खाते और बातें करते हुए भी मुसलसल इमामा और जलाल के बारे में सोचता रहा। कई माह बाद यकदम वो इसके जहन में फिर ताज़ा हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा अपने घर वापस चली गई हो? खाना खाते खाते इसे अचानक ख्याल आया। हाँ, ये मुमकिन है। इसका जहन मुतवातिर एक ही जगह अटका हुआ था। मुझे पापा से बात करनी चाहिए, इन्हें यकीनन इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। सिकंदर और उस्मान भी इन दोनों शादी में शिरकत की गर्ज से वहीं थे। वापस घर आने के बाद रात के करीब जब इसने सिकंदर को तन्हा देखा तो इसने इमामा के बारे में पूछा। पापा, क्या इमामा वापस घर आई है? इसने तमहीद के बगैर सवाल किया, और इसके सवाल ने कुछ देर के लिए सिकंदर को खामोश रखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? चंद लम्हों के बाद इन्होंने दृष्टि से कहा, बस ऐसे ही। इसके बारे में इतना गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी स्टडीज़ अपना ध्यान रखो तो बेहतर है। पापा प्लीज़ आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्यों जवाब दूँ? तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? सिकंदर की नाराज़गी में इजाफा हुआ। पापा, इसका बॉयफ्रेंड आज मुझे मिला है, यहाँ वहीं जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो फिर ये कि इन दोनों ने शादी नहीं की। वो बता रहा था कि मामा इसके पास गई नहीं, जबकि मैं समझ रहा था कि लाहौर जाने के बाद वो इसी के पास गई होगी। सिकंदर ने इसकी बात काट दी। वो इसके पास गई है या नहीं, इसने शादी की है या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ना ही तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। हाँ, ये मेरा मसला नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ, क्या इमामा आपके पास आई थी? आपने इसे शादी के पेपर्स कैसे भिजवाए थे? मेरा मतलब किसके ज़रिए? सलार ने कहा। तुमसे किसने कहा कि इसने मुझसे रब्ता किया था? वो इनके सवाल पर हैरान हुआ। मैंने खुद अंदाज़ा लगाया, इसने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। वो रब्ता करती तो मैं हाशिम मुबीन को इसके बारे में बता देता। सलार इनका चेहरा देखता रहा। मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली थी और मेरे हाथ वो निकाहनामा लग गया। मुझे यहाँ भिजवाते हुए आपने कहा था कि आप वो पेपर्स इमामा तक भिजवा देंगे। हाँ, ये इस सूरत में होता अगर वो मुझसे रब्ता करती, मगर इसने मुझसे रब्ता नहीं किया। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि इसने मुझसे ज़रूर रब्ता किया होगा? इस बार सिकंदर ने सवाल डाला। सलार कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने पूछा, पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं, पुलिस को पता चलता तो अब तक वो हाशिम मुबीन के घर वापस आ चुकी होती, मगर पुलिस अभी भी इसकी तलाश में है। सिकंदर ने कहा। एक बात तो तय है सलार कि अब तुम दोबारा इमामा के बारे में कोई तमाशा नहीं करोगे। वो जहाँ है, जिस हाल में है, तुम्हें अपना दिमाग ठिकाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पुलिस जैसे ही इसे ढूंढेगी वो पेपर्स हाशिम मुबीन तक पहुँचा दूंगा ताकि तुम्हारी जान हमेशा के लिए इसे छूट जाए। पापा, क्या इसने वाकई कभी घर फ़ोन नहीं किया मुझसे बात करने के लिए? सलार ने इनकी बात पर गौर किए बगैर कहा। क्या वो तुम्हें फ़ोन किया करती थी? वो इनका चेहरा देखने लगा। घर से चले जाने के बाद इसने सिर्फ एक बार फ़ोन किया था, फिर मैं यहाँ आ गया। हो सकता है इसने दोबारा फ़ोन किया हो जिसके बारे में आप मुझे नहीं बता रहे। इसने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। अगर करती तो मैं तुम्हारी और इसकी शादी के बारे में बहुत से मामलात को ख़त्म कर देता। मैं तुम्हारी तरफ से इससे तलाक दे देता। ये सब आप कैसे कर सकते हैं? सलार ने बहुत पुरसुकून अंदाज में कहा। यहाँ तुम्हें भिजवाने से पहले मैंने एक पेपर्स तुम्हारे सिग्नेचर्स लिए थे। मैं तलाकनामा तैयार करवा चुका हूँ, सिकंदर ने जताते हुए कहा। फेक डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट, सलार ने इसी अंदाज में तबसरा किया। मैं तो नहीं जानता था कि आप तलाकनामा तैयार करवाने के लिए मुझसे साइन करवा रहे हैं, तो फिर इस मुसीबत को मेरे सर पर लाना चाहते हो? सिकंदर को यकदम गुस्सा आ गया।
मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसके साथ रिश्ता को कायम रखना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप मेरी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। ये मेरा मामला है, मैं खुद ही कैसे ख़त्म कर दूँगा। तुम सिर्फ ये शुक्र करो कि तुम इस वक्त यहाँ इत्मीनान से बैठे हुए हो, वरना तुमने जिस खानदान को अपने पीछे लगा लिया था वो खानदान कब्र तक भी तुम्हारा पीछा ना छोड़ता। और ये भी मुमकिन है वो यहाँ भी तुम्हारी निगरानी करवा रहे हो या इंतज़ार कर रहे हो कि तुम मुतमईन होकर दोबारा इमामा के साथ रब्ता करो और वो तुम दोनों के लिए एक कुआं तैयार कर लें। आप ख्वामखा मुझे खौफज़दा कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूँ कि यहाँ अमेरिका में कोई मेरी निगरानी कर रहा होगा, और वो भी इतना अरसा गुजर जाने के बाद। और दूसरी बात ये है कि मैं इमामा के साथ कोई रब्ता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वाकई नहीं जानता वो ये कहाँ है। फिर रब्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तुम्हें इसके बारे में इतना कॉन्शियस होने की क्या ज़रूरत है? वो जहाँ है जैसी है रहने दो इसे। सिकंदर को कुछ इत्मीनान हुआ। आप मेरे मोबाइल के बिल चेक करें, वो मोबाइल इसके पास है। हो सकता है पहले नहीं तो अब इसकी कॉल्स कर लेती हो। वो इससे कॉल्स नहीं करती, मोबाइल मुस्तकिल तौर पर बंद है। जो चंद कॉल्स इसने की थी वो सब मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली लड़कियों को ही थी, और पुलिस पहले ही इन्हें इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। लाहौर में वो एक लड़की के घर गई थी, मगर वो लड़की पेशावर में थी और इसके वापस आने से पहले ही वो इस घर से चली गई। कहाँ गई ये पुलिस को पता नहीं चल सका। सलार चुपती हुई नज़रों से इन्हें देखता रहा। फिर इसने कहा, आपको हसन ने मेरे और इसके बारे में बताया था? सिकंदर कुछ बोल नहीं सके। मोबाइल के इमामा के पास होने के बारे में सिर्फ हसन जानता था। कम से कम ये ऐसी बात थी जो सिकंदर उस्मान सिर्फ इसके कमरे की तलाशी लेकर नहीं जान सकते थे। इसे इनसे बात करते हुए पहली बार अचानक हसन पर शबा हुआ था, क्योंकि सिकंदर उस्मान को इतनी छोटी मोटी बातों का पता जो सिर्फ इसे पता था या फिर हसन को, कोई तीसरा इनसे वाकिफ नहीं था। इसने सिकंदर उस्मान को कुछ नहीं बताया था, तो यकीनी तौर पर यह हसन हो सकता था जिसने इन्हें ये सारी तफसीलात से आगाह किया था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे हसन ने बताया है किसी और ने? ये तो हो नहीं सकता था कि इस बात के बारे में मुझे पता ना चलता। ये सिर्फ मेरी हिमाकत थी कि मैंने हाशिम मुबीन के इल्ज़ामात को संजीदगी से नहीं लिया और तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लिया। सलार ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ माथे पर तेवरियां लिए इन्हें देखता और इनकी बात सुनता रहा। अब जब मैंने तुम्हें इस सारे मामले से बचा लिया है तो तुम्हें दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की नहीं चाहिए जिससे। सिकंदर उस्मान ने कदर नर्म लहजे में कहना शुरू किया, मगर इससे पहले कि इनकी बात मुकम्मल होती, सलार ने एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया।